Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video I will be starting with question number 42 of GATE 2017 chemistry paper. So looking at this question, it is written that bismuth undergoes beta decay to 1 by 8 of its initial amount in 15 days. The time required for its decay to 1 by 4th of the initial amount is. So it's a very simple question. हमें क्या पता होना चाहिए कि जो decay है वो कौन सा order reaction है, that is a first order reaction. तो अगर हम decay का rate equation लिखें, concentration at time t and NO is the initial concentration or the initial amount. So what they have given is right now is n by n naught when it is 1 by 8, then at that time K was 15 days, okay? And what they want us to know is when will be it 1 by 4. So 1 by 4 will be equal to e to the power minus k into t. So rate constant will be fixed and we have to calculate this t. So what we have to do is just eliminate this k and then find this t, okay? दो equations हैं, दो variables हैं, and we can solve it. What we can do is, first of all, we can take the log natural of both the sides, both the equation. That will be first and second. तो अगर हम log natural लेंगे तो log natural 1 by 8, इसका अगर लेंगे तो ये हो जाएगा minus k into 15, okay, that is in days. And इसका second equation का लेंगे तो log natural 1 by 4 will be minus k into t, okay. Now we have to eliminate this k, तो इसको eliminate करने के लिए divide कर देंगे. तो divide करेंगे तो हो जाएगा log natural 1 by 8 by log natural 1 by 4 will be equal to, negative also cancel, k gets cancelled out, 15 by t. And we have to calculate this t. So t will be ultimately equal to 15 into log natural 1 by 4 by log natural 1 by 8. So we have to calculate this and this will come in days and the answer has to be given in days itself. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, so log natural 1 by 4 will be, this is actually 15 into minus 1.386 divided by, and log natural 1 by 8 will be minus 2.079, and we have to then multiply it with 15,386 divided by 2.079. This will give us 10. Okay. So in 10 days, it will reach to 1 by 4th of its initial concentration. So this is the logic. हमको ये पता होना चाहिए कि जो decay है वो first order reaction है और फिर first order reaction के लिए जो integral term है वो क्या है, to know the amount at particular time t. So this is a simple question. अब 43 क्वेश्चन को देखें. अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि वेदर यू नो द पर्टिकुलर एंजाइम और पर्टिकुलर कंपाउंड और नॉट. सो द मेटल आयन एंड माइक्रोस्कोपिक स्केलेटन प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट. अगर वो ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट की बात करें दैट मीन्स दे आर टॉकिंग ऑफ क्लोरोफिल. और अगर क्लोरोफिल की बात करें तो उसमें जो मेटल आयन होगा वो होगा मैग्नीशियम. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. Magnesium will be in +2 oxidation state and that it will have chlorine ring. So this is what you need to know in this question कि whether जो magnesium है वो +2 oxidation rate में, इसमें दो ही ऑप्शन है. एक तो उन्होंने मैंगनीज मेंशन किया और एक उन्होंने मैग्नीशियम मेंशन किया. तो मैंगनीज तो नहीं है. सेकंड थिंग इज यू नीड टू नो व्हाट द रिंग इज. इट इज द क्लोरीन रिंग. सो इसका अल्टीमेटली आंसर ए हो जाएगा. अब 44th क्वेश्चन को देखिए. तो 44th क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ट्वाइस O4. सो इसका स्पाइनल स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन कौन से कैटायंस होंगे. ठीक है, साइड्स में ऑक्टाहेड्रल साइड्स एंड टेट्राहेड्रल साइड्स में कौन कौन से कैटायंस होंगे. ठीक है, अब जो ये स्पाइनल गिवन है दिस इज एन FCC स्ट्रक्चर. ओके, इसका मतलब इसका जो Z वैल्यू है दैट शुड बी 4. ओके, दैट इज पॉइंट्स में. और अगर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है टेट्राहेड्रल वॉइड,
तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू Z itself. So number of octahedral voids will be 4 and number of tetrahedral voids will be double the octahedral number of octahedral voids. तो tetrahedral voids जो होंगे वो हो जाएंगे 8. ठीक है, तो this will be the number of voids and this will be the number of tetrahedral voids. And now what we have to calculate is whether which of the following ion, magnesium 2+ है और aluminium 3+ है, ये कहाँ जाएंगे. ठीक है, अभी देखिए ये हम अज्यूम जनरली ये ट्रांजिशन मेटल्स में आता है और ट्रांजिशन मेटल्स में हम CFSE कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सा कैटायन कौन से वाले वॉइड में जाएगा. ओके, बट सिंस दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल आयन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर नॉट, दे आर मेन ग्रुप आयंस. तो इसके लिए मेन ग्रुप के लिए जनरली जो स्पाइनल्स होते हैं वो नॉर्मल स्पाइनल्स ही होते हैं. ओके, तो दिस इज नॉर्मल स्पाइनल. पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें हम CFSE कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे हैं. अब ये नॉर्मल स्पाइनल है, तो नॉर्मल स्पाइनल के लिए क्या चीज है, नॉर्मल स्पाइनल के लिए जो भी आयन है जिसका 3+ चार्ज है, it should go to octahedral void. Okay, and the ion with 2+ charge should go to tetrahedral void. So for normal spinels, for inverse spinels, what will happen, the opposite will happen. The ion with 3+ charge has to go to tetrahedral void and the ion with 2+ charge has to go to octahedral void. But this is normal, क्योंकि यहाँ पर CFSE की बात नहीं करेंगे. तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नीशियम है it will go to tetrahedral void because +2 has to go tetrahedral and aluminium +3 will go to octahedral voids. ठीक है, और मैग्नीशियम 1 है तो उसका और tetrahedral voids 8 है, तो मैग्नीशियम जो है वो 1/8 का आएगा और जो aluminium का आएगा 2 aluminium है and they have to go to 4 octahedral voids to 2/4, that is 1/2. Okay, so the question is the fraction of octahedral and tetrahedral sites. तो octahedral site में aluminium गया है तो octahedral site में 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगा एंड tetrahedral site में मैग्नीशियम गया तो वो 1/8 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 and 1/8. What we need to know is that first of all spinal जो given है it is a FCC, hence number of voids octahedral will be 4 which is equal to Z value and number of tetrahedral voids will be 8 which is double the number of octahedral voids. This we need to know. Then what we need to know is whether this spinal is inverse or normal. When it is normal, then the +2 will go to tetrahedral. When it is inverse, then +2 will go to octahedral. So this is what we need to know. And again a conceptual question. अगर यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आयंस होते तो ये और बड़ा क्वेश्चन हो जाता, हमें पहले CFSE निकाल के देखना पड़ता कि कौन सा आयन कहाँ जाएगा. ठीक है, बट ये मेन ग्रुप था तो वी आर इजिली एबल टू से दैट दिस इज अ नॉर्मल स्पाइनल. ओके, सो टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 45. सो क्वेश्चन नंबर 45 इज अबाउट डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट एट अ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड. गिवन है मैग्नीशियम 2+ का सोल्यूशन है एंड कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. इफ कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज बाय 0.1 देन व्हाट इज द चेंज, देन द चेंज इन डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट इंक्रीजेस टू 900. वैल्यू ऑफ C, हमको C निकालना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था. ठीक है, अब ये पोलैरिग्राफी का क्वेश्चन है और डिफ्यूजन करंट जो है, ठीक है, अगर आप इल्कोविक इक्वेशन देखेंगे तो डिफ्यूजन करंट जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्व है. ठीक है, इनटू m raised to power 2/3. m is the rate of flow of mercury. ठीक है, into diffusion coefficient raised to power half, concentration C and drop, mercury drop raised to power 1/6. T is the drop. Okay, तो raised to power 1/6. अब पर हमें मेजर क्या चीज देखनी है, यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें जो पता होना चाहिए, एक तो डिफ्यूजन कॉएफिशिएंट और बाकी टर्म्स जनरली पूछी नहीं जाती हैं. हमें डिफ्यूजन कॉएफिशिएंट और कॉन्सेंट्रेशन का जो डिपेंडेंसी है वो आईडी के साथ पता होना चाहिए. तो डिफ्यूजन कॉएफिशिएंट हाफ है और कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडी. तो यहाँ इस क्वेश्चन में केवल कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है. सो व्हाट विल डू इज आईडी विल बी इक्वल, इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पर हम सब चीज है, रेट फ्लो है, मर्क्यूरी का ड्रॉप रेट, डिफ्यूजन कॉएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन एंड टी इज अ ड्रॉप टाइम. ओके, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन और आईडी के क्या रिलेशन है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. सो आईडी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज दीज कांस्टेंट्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इन्होंने मेंशन किया है
कि जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज C and the ID at that time is 300. So 300 microampere will be equal to K into C, and they are giving that if it is increased by 0.1 then what is C? So it becomes 900 ampere K into C plus 0.1. Okay, and we have to calculate C. Simple क्या करना है कि हमें divide करना पड़ेगा. I will be dividing 2 by 1. So 900 by 300 will give us 3 unitless. K to K is getting cancelled. C plus 0.1 by C. That means it is equal to 1 plus 0.1 by C. Again 2 will be equal to 0.1 by C, and C will be equal to 0.1 by 2. That is 0.05. Okay. So this is the answer. So 0.05 and इसका आंसर जो है वो इसी यूनिट में होगा जिसमें यूनिट में 0.1 गिवन है. तो 0.1 मोल पर लीटर. So this will be 0.05 moles per liter. So and we have to report in moles per liter. So इसका आंसर हो जाएगा 0.05. Okay. क्या चीज तुमको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन करंट. ओके. एंड जंपिंग टू द 46th क्वेश्चन. A 46. So what we have is we are having an OH. Okay, and we are having Fenton's reagent. Okay, this is called Fenton's reagent on slide. What will it specifically do is it will oxidize the OH which is near to double bond to an aldehyde. From this. अब क्या हो सकता है जो ये OH है वो ये अटैक करेगा इस एल्डिहाइड पे एंड वी विल बी फॉर्मिंग अ साइक्लिक एसिटल. ओके. सो व्हाट हैपेंस इज 1 2 3 4 5 मेंबर्ड एसिटल है. यहाँ पर ही हो जाएगा. And again this Fenton's reagent can again oxidize this OH to a cyclic ester. Okay, so this will be formed. उसका आंसर हो जाएगा A. हमको क्या देख Fenton's reagent सबसे पहले ये चीज देखनी है कि Fenton's reagent CH2OH को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, स्पेसिफिकली उसको जो डबल बॉन्ड के साथ है, और स्पेसिफिकली ये जो रिएजेंट्स हैं जिनमें एक साइक्लिक एसिटल बना हुआ है, तो इन एसिटल्स को भी ऑक्सीडाइज करने के लिए हम फेंटोन्स रिएजेंट को यूज करते हैं. तो ये तो स्पेसिफिकली फेंटोन्स रिएजेंट की खासियत है कि वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा. एंड दैट इज आल्सो अ स्पेसिफिकेशन ऑफ फेंटोन्स रिएजेंट दैट इट विल ऑक्सीडाइज एन OH व्हिच इज नियर टू अ डबल बॉन्ड. सो दिस इज द आंसर. सिंपल हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली किसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, एंड देन फर्दर जो एसिटल बना है दैट विल ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन. सो एंड हेंस इट विल फॉर्म प्रोडक्ट C. Talking of 47th question, the product formed in the following photochemical reaction. So, अगर हम बात करें the product formed in the following photochemical reaction is, so this is again a dipy photochemistry का question है. Dipy rearrangement होगा. So pH, Me, and in presence of photons. ओके. तो फोटॉन्स के प्रेजेंस में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी रेडिकल्स में. तो व्हाट विल हैपन इज रेडिकल दिस विल बी Me, दिस विल बी pH, and then we are having this. So what will happen is a cyclopropane ring will be formed. ये दोनों सबसे पहले आपस में क्लब कर जाएंगे, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी पहले यहाँ पर. These are the radicals left. So what will happen is again, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है वो बहुत स्टेबल नहीं है, तो again it can split. How it will split is it can split in 2 ways. पहला, यहां से ये बॉन्ड टूटे और ये जो रेडिकल है वो यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाए. ठीक है. बट what can happen is this. ओके. ये बॉन्ड तोड़ा है और ये डबल बॉन्ड बनाया है.
okay, and the other pathway which can happen is this bond can break and we will get the opposite thing, that is we get this pH के साथ डबल बॉन्ड है, okay, and then we'll be having this radical and then this radical, okay. So what will happen, so among these two we have to चूज की ये पाथवे कौन सा जाएगा, यहां से ब्रेकेज होगा या यहां से ब्रेकेज होगा. तो देखिए यहां से तो इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट विल गिव अल्टीमेटली द रिएक्टेंट, ओके. तो 3 वेज है, ये बॉन्ड तो नहीं ब्रेक होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट देगा. अब इन दोनों बॉन्ड्स में से कौन सा ब्रेक होगा, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग अनस्टेबल है तो ब्रेक होगा ही. तो अभी हमें क्या करना है, काफी अनस्टेबल है, स्ट्रेन है काफी. फर्दर भी इट कैन गो अगेन टू अ साइक्लोप्रोपेन रिंग बट दिस इज स्ट्रेन राइट नाउ. सो अब हमें इन दोनों में चॉइस करनी है कि विच विल बी द पाथवे. तो अगर आप इनमें रेडिकल की स्टेबिलिटी देखिए तो ये रेडिकल तो सेम है, तो इट इज गॉन. नाउ वी हैव टू सी दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल. तो अमंग दिस रेडिकल इट इज हैविंग अ रेजोनेंस, इट कैन गो टू रेजोनेंस, इट इज मोर स्टेबलाइज कंपेयर टू दिस रेडिकल जिसके पास CH3 है. सो क्योंकि ये रेडिकल स्टेबल है तो ये पाथवे फॉलो होगा और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस वे से नहीं जाकर इस वे से जाएगा and we will be getting this structure, okay. So देखिए जब भी आप एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं एंड व्हाट वी हैव टू गो थ्रू किया कि क्या ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमारे प्रोडक्ट को रीच करता है कि नहीं. तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो है जिसमें Me और pH साइक्लोप्रोपेन रिंग में है, तो दिस विल बी D, ऑप्शन D, ओके. वी हैव टू सी दिस. हमको ये देखना है कि क्या स्टेबिलिटी ऑफ पीएच है, बोथ पाथवेज देखने पड़ेंगे और जो स्टेबल रेडिकल है उसके थ्रू ये रिएक्शन जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड डाइपाई रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछी गई है ये गेट में एंड नेट में. तो द कंसेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल विच वी हैव टू सी, ओके. टॉकिंग ऑफ 48th क्वेश्चन, okay, among the following the one that yields 9-methyl, so what they have given is 9-methyl amino, so this will be on 9th number. तो nonene है 1 2 3 and it is E again, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 and 9th, okay. 9th है 5th पोजीशन पे ओके. 1 2 3 4 5th. तो 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है and that double bond is trans. So E है तो we have to form trans. तो ये जो है ये trans form में आएगा इसके साथ. तो 3 4 5 6, okay. तो this is the product which we have to form. trans में form करना है. तो अब हमें इसके प्रोडक्ट्स देख के ही सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन होगा, ठीक है. हमको ट्रांस डबल बॉन्ड चाहिए तो पहली बात तो वी हैव टू यूज ट्रांस डिकेलिन बिकॉज हमको ट्रांस डबल बॉन्ड चाहिए. तो वी हैव टू यूज ट्रांस डिकेलिन. तो दैट मीन्स हमको कोई इस तरह का लेना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5th पोजीशन यहाँ की ट्रांस होती है, ठीक है. अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा 5th पोजीशन को तो दिस विल गिव अस ट्रांस. सो वी हैव टू यूज अ ट्रांस डिकेलिन सो दैट वी गेट द ट्रांस प्रोडक्ट ई प्रोडक्ट. तो इसमें हमें ए और सी ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द ओनली प्रोडक्ट जहां पर जो ब्रिज हेड हाइड्रोजन है वो ट्रांस है, क्योंकि बी और डी में जो ब्रिज हेड हाइड्रोजन है वो सिस है. इट इज काइंड ऑफ अ सिस डिकेलिन एंड इट वोंट गिव अस द ई प्रोडक्ट, ओके. सो द ई प्रोडक्ट हैज टू बी फाउंड फ्रॉम ए एंड सी. अब हमें देखना है कि ए या सी में से क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएगा, ठीक है. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें
नाइट्रोजन के साथ CH3। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, ए ऑप्शन को देखें, जिसमें OTS बिलो द प्लेन है, और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें OTS जो है वो अबव द प्लेन है। ठीक है, रिंग डिग्रेडेशन हुई है इसमें। सो अबव द प्लेन में OTS रहेगा। तो अगर हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहां से ये दिस बॉन्ड हैज टू शिफ्ट एंड दिस बॉन्ड हैज टू शिफ्ट बैक टू दिस। सो व्हाट वी कैन गेट इज ट्रांस एंड देन दिस। ओके, बट इसके लिए अभी हमें क्या देखना है, पहले तो ट्रांस बनना चाहिए, तो इसलिए हमने ट्रांस डिकेलेंट यूज किया। सेकंड चीज, अभी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो देखिए बिलो द प्लेन वाला जो है वो ये और ये इसकी जो सिमेट्री है, अब बिलो द प्लेन वाला जो है इट कैनॉट कॉज डिग्रेडेशन। द अबव द प्लेन जो है वही डिग्रेडेशन कॉज कर सकता है, इसीलिए अबव द प्लेन इज द आंसर। ये चीज जनरली कंफ्यूजन होती है कि बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन में से क्या है। जो अबव द प्लेन है जनरली वही डिग्रेडेशन कॉज करते हैं इंस्टेड ऑफ द बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन इसलिए नहीं कॉज कर पाएगा क्योंकि इसको इस बॉन्ड को पुश करना डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर टू OTS विच इज अबव द प्लेन। उसको इजी रहेगा कि इस बॉन्ड को वो स्पेसिफिकली पुश कर सके टुवर्ड्स द ब्रिज हेड कार्बन्स। ओके, सो दिस का जो आंसर है वो हो जाएगा 48। टॉकिंग ऑफ 49th क्वेश्चन, so 49th question is it is a question of NGP. okay, तो इन्होंने बिलो द प्लेन OTS लगाया है और CH3 and then they are actually causing hydrolysis. okay, so what will happen at first is because OTS is a leaving group, तो it will cause leaving group। अगर ये above the plane है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा above the plane oxygen, then this and again this oxygen। okay, and this will cause a positive। okay, ये बनेगा and then what will happen is we are having OAC which can attack। so now when OAC will come it can attack। अब क्योंकि दोनों जो हमारे ये ऑक्सीजन हैं ये अबव द प्लेन है, तो OAC अटैक बिलो द प्लेन करेगा। अब बिलो द प्लेन वो यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। तो वी विल बी फॉर्मिंग टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज बिलो द प्लेन, अगर OAC आएगा तो यहां से, एंड दिस विल बी अबव द प्लेन, दिस इज अगेन OAC। और अगर वो यहां से अटैक करेगा तो इट विल बी बिलो द प्लेन हेयर एंड अबव द प्लेन हेयर। okay, so what we'll be getting is, what we are getting both of them are trans and they are racemic mixture। so we'll be getting a racemic mixture of trans one, we are not getting pure क्योंकि दोनों मिलेंगे, they are enantiomers, they both are enantiomers to each other, we are getting, and both of them are formed in equal amount, so we'll be getting a racemic mixtures of trans product। so we'll be getting trans product and the answer will be a racemic mixture of trans 1,2 diacetyl acetoxycyclohexene। so this will be the answer। so what we have to keep in mind is that NGP can happen। हो सकता है कि हम केवल ये अटैक करवा के NGP भूल जाएं, पर NGP को याद रखना है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा whenever there is a लिविंग ग्रुप। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। NGP आप क्लेडन से पढ़ सकते हैं, क्लेडन में बहुत अच्छे से NGP को एक्सप्लेन किया गया है। एंड दिस क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो get insights of this question from Clayton also। so thank you so much for watching this channel। I'll be presenting the next questions in the next video। thank you so much।